today we'll cover a new chapter, and probably this will be the last chapter, but it is a long chapter, so we'll have to cover. I think this chapter is the combination of three chapters actually. So in this chapter we'll cover balance of payment, foreign exchange market, and currency derivatives. Okay. So, beta, is the screen visible? Yes, sir. Okay. So, what is the chapter outline here? Chapter outline is we have to discuss balance of payment in detail and function and structure of the forex market, and then forex market participants, and then the last part is the spot market and the derivative market. Okay. So, first of all, balance of payment. Yes, anyone who has any information or knowledge regarding balance of payment, what is it, and why do we use balance of payment? जी बुशरा बेटा. Sir, balance of payment basically it is a record of all economic transaction Okay, between the resident country and the rest of the world. very good, very good. Okay, so balance of payment is basically a record of transactions, and it's a record of transactions between of cash inflows and outflows of a particular country with respect to other countries. Okay, so whatever the country is importing or exporting, the all the recorded transactions are made in balance of payment. Okay, so we'll learn how balance of payment is prepared, and at the end of this balance of payment part, I'll give you one problem to solve by yourself, because by then we'll be able, inshallah, we'll be able to understand what balance of payment is and how it is prepared. Okay, so basically balance of payment, what is the definition, what are the components of balance of payment? We are coming towards component later, but let's discuss first what are the ingredients of this balance of payment part. Definition: components, factors affecting international trade flows, correcting balance of trade, and direct foreign institutions by US firms in direct finance institutions, or direct foreign institutions in US, factors affecting DFIs, okay, and factors affecting international portfolio investment and agencies helping correcting balance of payment. Okay, so these are the ingredients of this chapter. We'll discuss these in detail. First of all, balance of payment sheet is an accounting record of all the monetary transactions between a country and the rest of the world. Okay, so we know each transaction is recorded as both a credit and a debit, so it's a double entry accounting system. Each transaction has dual effects, and the transactions are presented in three groups. What are the groups? That is current account, capital account, and financial account. So we'll discuss what current account is, what capital account is, and what financial account is. Balance of payments may be used as an indicator of economic and political stability. Okay, so it's used as an indicator of economic and political stability. It summarizes all the international transactions in a particular period, in a particular year. Okay, so what are the cash inflows and what are the cash outflows? Actually, cash inflows are the
Okay, beta. So what are the cash inflows? The cash inflows are the sources of funds for a nation, such as exports or the receipts of loans. Okay, so the sources of funds for a nation are cash inflows. When we export particular items out of country, we get foreign reserves, we get dollars, we get other countries currencies. Okay, so this increases the foreign reserves held by the central bank. Cash inflows are recorded as credit in balance of payment transactions. Okay, they are recorded as credit because the foreign money comes into our country. Okay, so exports are cash inflows and they are recorded as credit. And what are the cash outflows? Cash outflows are the uses of funds, such as for imports. When we import something, when we import vehicles, when we import any particular commodity from any other country, so we actually give money to those countries. The foreign reserves move out of our central bank's account. Okay, so cash outflows are recorded as a debit in the balance of payment transaction. So one thing is clear: exports are cash inflows and they are recorded as credit, and imports are cash outflows, they are recorded as debit in the balance of payment transactions. So there are basically three components. One is current account, other is capital account, and the third one is फाइनेंशियल अकाउंट. बेसिकली करंट अकाउंट ये समझ लें कि जैसे हम बनाते हैं हमारे पास जो बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में राइट साइड पे हम लिखते हैं एसेट्स, और लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं एसेट्स, और राइट साइड पे लिखते हैं हम लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी. तो उसी तरीके से जो करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट बेसिकली आपका समझ लें कि ये एसेट साइड है, और बाकी जो कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट हैं ये लाइबिलिटीज और इक्विटी सेक्शन है. ठीक है, तो तीन सेक्शंस होते हैं. और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज द सम ऑफ द कंपोनेंट्स अबव एंड दिस सम मस्ट इक्वल टू जीरो. मतलब ये कि ये तीनों अकाउंट्स जो हैं वो इनका जो मतलब बैलेंस होता है वो हमेशा जीरो होता है. अब ये क्वेश्चन है कि भाई ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो कैसे होता है? क्योंकि बेटा क्योंकि अगर आप करंट अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट करेंगे. ठीक है, अगर करंट अकाउंट में कोई चीज जो है वो डेबिट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट में वो चीज क्रेडिट करेंगे. करंट अकाउंट में कोई भी चीज जो है वो अगर आप प्लस करेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ प्लस रिकॉर्ड करेंगे +100, ठीक है, अगर यहाँ +100 रिकॉर्ड करेंगे तो उसी का जो क्रेडिट अकाउंट होगा या डेबिट अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट में, वो माइनस रिकॉर्ड करेंगे आप 100. तो डेफिनेटली अगर करंट अकाउंट में 100 प्लस का आ गया और कैपिटल अकाउंट में 100 माइनस का आ गया तो बैलेंस अल्टीमेटली जीरो ही हो जाएगा. ठीक है, कैश इनफ्लो अगर आप रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में तो कैश आउटफ्लो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये होता है. ओके, देन वी हैव द बैलेंस ऑफ पेमेंट डायग्राम व्हिच इज करंट अकाउंट में भाई कौन सी चीजें होती हैं? करंट अकाउंट में दो तरह की चीजें होती हैं. ठीक है, अब तीन अकाउंट हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के. एक तो करंट अकाउंट है, दूसरा जो है आपका कैपिटल अकाउंट है, और तीसरा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंट. ठीक है, तीन अकाउंट्स होते हैं. तो एक हो गया ये करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. अब यहाँ जो करंट अकाउंट में जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं कि भाई करंट अकाउंट जो है वो आपका एक्चुअली बेटा ये नाम है ये चेंज कर दें. ठीक है, इस तरीके के अपने जो भी आप लॉगिन होते हैं तो अपने नाम से, और उसके अलावा जो है वो ये नेम जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ. ठीक है, अपने नाम से प्लीज़ लॉगिन होएं और कोई अननोन नेम ना हो. ठीक है, नाम
अगर कोई जो है वो इस तरीके से कोई अनफेमिलियर नेम आपने अपनी आईडी में डाल दी है तो आप उसको रीनेम कर दें, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखें कि एक्सपो करंट अकाउंट में एक्चुअली क्या होता है कि करंट अकाउंट में हमेशा जो है वो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होते हैं जिसको हम विजिबल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो हैं ये करंट अकाउंट के पार्ट्स हैं। बेसिकली तीन पार्ट्स हैं करंट अकाउंट के, एक तो है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, दूसरा पार्ट है नेट फॉरेन इनकम, ठीक है, और तीसरा पार्ट जो है वो यूनिलेटरल ट्रांसफर है। तो करंट अकाउंट में तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब करंट अकाउंट में एक जो जो फर्स्ट वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स में दो दो तरीकों का ट्रेड होता है, एक होता है विजिबल ट्रेड, ठीक है, और दूसरा होता है इनविजिबल इनविजिबल ट्रेड, ठीक है। विजिबल ट्रेड मतलब जिसमें आप मर्चेंडाइज जो हैं फिजिकल फॉर्म में आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। और इनविजिबल में ये होता है कि आप जो है वो सर्विसेज जो होते हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। बेटा गिव मी 1 मिनट। Okay, so we have exports minus imports. Exports minus imports are called net exports. So one is visible trade and other is invisible trade. Mute कर दें. Okay. Invisibles are services, the services that we import or export. Okay, these are invisible trade. So both are the part of current account. Okay, then there comes net foreign income. What is net foreign income? Net foreign income is net profits and interest on foreign assets. अगर आप कोई भी किसी कंट्री का बॉन्ड परचेज करते हैं किसी कंट्री से, जैसे आपने इंग्लैंड से या अमेरिका से उसके जो कंपनीज हैं अमेरिका में उनका कोई आपने जो है वो शेयर परचेज किए हैं, आपने कोई बॉन्ड्स परचेज किए हैं वहां से, ठीक है। तो उनमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा या उनमें आपको जो जो डिविडेंड मिलेगा, that dividend or interest received on particular security is the part of net foreign income, ठीक है। और तीसरा है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब अगर कोई कंट्री जैसे सऊदी अरब इज गिविंग एन एड टू पाकिस्तान, ठीक है, कोई रिलीफ दे रहे हैं, एड दे रहे हैं, तो हम उसको इंटरनेशनल एड कहते हैं और उसको हम करंट अकाउंट का जो पोर्शन है, ठीक है, यूनिलेटरल वाला, उसमें हम इंक्लूड करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ओके, देन वी हैव कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लोज। जैसे हम कोई किसी किसी कंट्री में कोई हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, ठीक है, और किसी कंट्री में जैसे जो है वो हम कोई भी इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो हम अगर किसी कंट्री में जाके करते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, ठीक है। और हॉट मनी या शॉर्ट टर्म फ्लोज जो है हम किस चीज़ को कहते हैं भाई? अगर आप किसी कंट्री के एसेट्स परचेज करते हैं, जैसे शेयर्स परचेज करते हैं या बॉन्ड्स परचेज करते हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि करंट अकाउंट में हमारे पास नेट फॉरेन इनकम होता है और कैपिटल अकाउंट में हमारे पास जो है वो शॉर्ट टर्म फ्लोज होते हैं। नेट फॉरेन इनकम जो है वो जो हमें रिटर्न मिल रहा होता है एसेट्स में से, बॉन्ड्स में से,
वो हम करंट अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। और जो चीज़ हम एसेट्स खुद परचेज करते हैं, जैसे हमने कोई शेयर परचेज किए $5,000 के, तो वो एसेट्स जो शेयर्स परचेज करेंगे वो कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे। ओके। Then there is foreign exchange reserves. Net change in reserves held by the central bank. Central bank में अगर कोई भी changes आ जाएगी foreign exchange reserves में, वो फिर लिखा जाएगा foreign exchange reserve वाले portion में। तो 3 portions हैं, current account, capital account और financial account। financial account जो है वो foreign exchange reserves है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर हमारा की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, वो वेट कर रही है। ये बेटा मैंने कर दी है, कर दी है। थैंक यू सर। यस, कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा जो पोर्शन है, कोई भी इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलें। ठीक है, ओके। तो करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट इज बेसिकली it summarizes the flow of funds between one specified country and all other countries due to the purchase of goods or services। ठीक है, और इसमें जो है वो यूनिलेटरल करंट ट्रांसफर्स आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो प्रोविजन ऑफ इनकम ऑन फाइनेंशियल एसेट्स आ जाते हैं, और उसके अलावा परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाते हैं। ठीक है, अ करंट अकाउंट डेफिसिट सजेस्ट अ ग्रेटर आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड कंट्री फॉर इट्स करंट ट्रांजेक्शन। अब करंट अकाउंट को ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। एक पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, और दूसरा पार्ट है फैक्टर इनकम, और तीसरा पार्ट है यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब तीनों को मैं डिफाइन कर लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ एक जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इट इज बेसिकली द बैलेंस बिटवीन द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ देखें कि अगर हम जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, सपोज करें कि कंट्री के जो इंपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो 100 मिलियन के हैं, और कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं 60 मिलियन के। ओके, तो व्हाट विल बी द बैलेंस? द बैलेंस वुड बी इक्वल टू हाउ मच? बैलेंस जो हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो कितना होगा? वो 40 मिलियन का होगा। तो 40 मिलियन वुड बी द बैलेंस ऑफ ट्रेड। बट ये जो 40 मिलियन है, ये 40 मिलियन जो है वो ये डेफिसिट में है या सरप्लस में है? सर ये डेफिसिट है क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है हमारी एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। एग्जैक्टली। तो इसका मकसद ये है कि अगर किसी कंट्री का जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे और एक्सपोर्ट्स कम होंगे, तो वी विल कॉल के द बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर दैट कंट्री इज इन डेफिसिट। ठीक है, तो वो हम कहेंगे कि भाई इस कंट्री का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट में है। अच्छा, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को और बैलेंस ऑफ ट्रेड को जो है वो क्या करते हैं, उसको कंफ्यूज करते हैं। मतलब जैसे ये कहते हैं कि भाई किसी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में है। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी डेफिसिट में नहीं होता। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा जो है वो बैलेंस होता है, जीरो होता है। ठीक है, जो डेफिसिट में या सरप्लस में होता है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी कहते हैं हम उसको। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सिंपली अ पार्ट ऑफ वन सेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी एक जो सेक्शन है करंट अकाउंट, उसका पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सिंपली स्मॉल पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट का एक पार्ट होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक्चुअली कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड में 2 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसको एक को हम कहते हैं विजिबल ट्रेड, और दूसरे को हम कहते हैं इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड, ठीक है। विजिबल ट्रेड मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, इंपोर्ट
और एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, ठीक है, मर्चेंडाइज का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। और इनविजिबल ट्रेड कहते हैं भाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है। ओके, नाउ अगर किसी कंट्री ने जो है वो इंपोर्ट किया मर्चेंडाइज, ठीक है, वो 200 मिलियन का, और एक्सपोर्ट किया मर्चेंडाइज इंपोर्ट किए सर्विसेज और एक्सपोर्ट किए सर्विसेज, तो कैलकुलेट बीओटी, ठीक है, एंड इंटरप्रेट, ठीक है। तो कितना होगा बीओटी? ओके, तो यहाँ देखें कि हमारे पास जो टोटल इंपोर्ट हैं, मर्चेंडाइज इंपोर्ट हैं, वो 200 मिलियन के। मर्चेंडाइज का मकसद होता है कि भाई जो चीज़ें फिजिकल फॉर्म में हम इंपोर्ट करवाएं या एक्सपोर्ट करें। और सर्विसेज मकसद कोई बाहर से कोई अगर यूएस का कोई डॉक्टर आ रहा है यहाँ पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज देने के लिए, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री से कोई प्रोफेसर आ रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में टीच करने के लिए, या यहाँ से कोई जो है वो कोई सर्विसेज बाहर जा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाते हैं, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो इसको इसमें जो है वो बीओटी कैसे कैलकुलेट होंगे? सिंपल ये है कि पहले तो जो इंपोर्ट्स हैं वो देख लें कि कितने हैं। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है भाई? जो है वो हम एक्सपोर्ट्स को अगर हम माइनस करें इंपोर्ट्स, ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स कितने हुए? एक्सपोर्ट्स जो हुए सपोज के भाई टोटल कितने हैं एक्सपोर्ट्स? 40 और 150, तो ये हो गया 190। और इंपोर्ट्स कितने हैं? 200 और 50, तो ये हो गया 250। तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस हमारे पास है -60 मिलियन। तो इसका मकसद अगर बैलेंस नेगेटिव में आ जाए तो हम उसको कहते हैं डेफिसिट, ठीक है। तो 60 मिलियन जो है वो डेफिसिट है हमारे पास। तो इसी तरीके से हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी चीज़ जो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्लियर है, अब उसके बाद हम चलते हैं फैक्टर इनकम के पास। फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम इज बेसिकली भाई वो चीज़ है कि हम जो है वो अगर किसी फॉरेन कंट्री के कंपनीज़ हैं, जैसे अमेरिका में कंपनीज़ हैं, तो वहाँ से हम अगर उनके एसेट्स परचेज करते हैं, जैसे फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं वो परचेज करते हैं, तो हमने कुछ शेयर्स परचेज किए अमेरिका की कंपनी के, ठीक है। तो हमें वहाँ से जो उसमें से हमें डिविडेंड मिला है, तो जो डिविडेंड मिला है, डिविडेंड हमारा तकरीबन जो है सपोज करें अगर डिविडेंड जो हैं डिविडेंड्स मिले हैं हमें 10 मिलियन के, ठीक है। और फॉरेन कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने हमारे कंट्री के कंपनीज़ जो हैं, कुछ हमारे जैसे पीएसओ है, शेल है, पीएसओ है, या हमारे पास दूसरे जो है लोकल कंपनीज़ हैं, तो उन कंपनीज़ के शेयर्स उन्होंने परचेज किए और हमने उनको जो है वो हमारी कंट्री से डिविडेंड्स उनको दिए गए हैं, सपोज करें अगर 8 मिलियन के।
ठीक है। तो 8 मिलियन के डिविडेंड्स दिए गए हैं, तो इसका जो फैक्टर, अब ये फैक्टर इनकम का जो नेट बैलेंस होगा वो कितना होगा, नेट फैक्टर इनकम कितना होगा, नेट फैक्टर इनकम कितना होगा भाई। डिविडेंड्स जो है हमने दिए हैं, जब हम डिविडेंड्स डिविडेंड्स हमने रिसीव किए हैं, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड डिविडेंड्स रिसीव्ड, ठीक है, और डिविडेंड्स इशूड। अब रिसीव किए हैं हमने जो है वो 10 मिलियन और हमने इशू किए हैं 8 मिलियन, तो नेट नेट फैक्टर इनकम कितना होगा, 2 2 मिलियन। मिलियन सर। 2 मिलियन का नेट फैक्टर इनकम होगा, बट ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है, इसको कहेंगे भाई ये जी सर। पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव हम कहते हैं भाई वो चीज़ जो हमें जिसमें हमें कुछ रुपए जो हैं वो बच जाएं, ठीक है, वो मिल जाएं, तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है वो मैं यहाँ इरेज नहीं कर रहा, क्योंकि हमें लास्ट में करंट अकाउंट सेक्शन है उसका टोटल बैलेंस निकालना है, ठीक है। यस सर। ओके, तो अब यहाँ देखें कि एक तो हमारे पास, बेटा माइक म्यूट कर दें जी। ओके, तो अब यहाँ देखें कि अब एक चीज जो हमने डिस्कस की वो बैलेंस ऑफ ट्रेड, और हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस मिला 60 मिलियन माइनस में, और दूसरी चीज हमने डिस्कस कर ली, वो चीज जो है वो हमारी थी फैक्टर इनकम, वो उसमें हमें बैलेंस मिल गया कितना, 2 मिलियन का। अब तीसरा जो है वो यूनिलेटरल ट्रांसफर है। अब यूनिलेटरल ट्रांसफर जो है, हम यूनिलेटरल ट्रांसफर में, बेटा माइक म्यूट करते हैं प्लीज। ओके ओके, यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या है कि भाई जो स्पेशल कंडीशंस में, जैसे इमरजेंसी की सिचुएशन में, हम अगर हमें किसी और कंट्री से कोई ग्रांट मिल जाए, कोई एड मिल जाए, कोई रिलीफ मिल जाए, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। क्योंकि वो यूनिलेटरल इसलिए कहते हैं कि भाई वो एक ही साइड पे होता है, मतलब हम उनको ग्रांट या रिलीफ देते हैं और बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। अब सपोज करें कि भाई हमें ग्रांट जो है वो मिल गई है, ग्रांट रिसीव्ड, ठीक है, तो ग्रांट रिसीव्ड सपोज करें, अगर हमें 15 मिलियन की ग्रांट मिली है, और हमने ग्रांट किसी कंट्री को हम देते भी हैं, ठीक है, किसी जैसे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं या हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, ठीक है, तो हम उनको ग्रांट अगर देते हैं तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ग्रांट इशूड, ठीक है, वो हमने ग्रांट सपोज 12 मिलियन की दे दी है, तो नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर कितने होंगे, नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर कितने होंगे, 3 मिलियन सर। 3 million, sir. ओके, तो नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर कितने हुए, 3 मिलियन। ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है सर, Positive सरप्लस है में sir. आएगा। Positive. सरप्लस में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों को प्लस माइनस करेंगे और हमें निकालना है, बैलेंस निकालना है। किसका बैलेंस निकालना है, बैलेंस ऑफ जो है वो नेट करंट अकाउंट हमें निकालना है, ठीक है, हम काउंट निकालेंगे करिए। यस नेट सर। करंट अकाउंट। भाई नेट करंट अकाउंट या करंट Yes, sir. अकाउंट का बैलेंस जो है वो कितना मिलेगा भाई, पहले हमारे पास माइनस 60 मिलियन थे, वो हमने लिख लिए, Yes, sir. प्लस में हम लिखेंगे जो 2 Yes, sir. मिलियन जो है वो नेट फॉरेन इनकम के, ठीक है, 2 मिलियन जो है हमारे पास जी नेट सर। इनकम है, और उसके बाद बेटा माइक म्यूट कर दें, और उसके बाद जो है वो नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर है वो है 3 मिलियन। तो टोटल कितना नेट करंट अकाउंट बैलेंस आएगा, आ जाएगा कितना, 55 सर। Minus 55. हाँ, तो इसका मकसद 55 डेफिसिट। इसका मकसद ये है कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में है, और इस डेफिसिट को खत्म जी करने जी सर। इस डेफिसिट को खत्म करने के लिए हमें कर्जा चाहिए होता है। तो क्योंकि अगर हमारे पास ये कर्जा नहीं होगा तो ये इस डेफिसिट को खत्म, क्योंकि अगर यहाँ करंट अकाउंट
करंट अकाउंट में अगर 55 मिलियन जो है वो नेगेटिव में है, तो डेफिनेटली विल हैव टू अरेंज और विल हैव टू फाइनेंस दिस करंट अकाउंट बैलेंस बाय अदर पार्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपने 3 अकाउंट्स पढ़े हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जी फाइनेंशियल सर, अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, यस सर। करंट अकाउंट समझ लें कि आपके एसेट्स होते हैं, और कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो आपके मतलब लाइबिलिटीज और इक्विटी वाला सेक्शन है। तो यहाँ जो आपका नेगेटिव बैलेंस आया है ना, तो ये इट मस्ट बी ऑफसेट बाय अदर पार्ट्स ऑफ दी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो शीट है उसके अदर पार्ट्स कौन से हैं, कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट। तो उसमें 55 मिलियन प्लस में होनी चाहिए। अगर यहाँ माइनस में आ रहे हैं ना, तो ये माइनस में जो है वो आपको मतलब डेफिसिट जो आपका होगा वो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। कहाँ से, कैपिटल अकाउंट से, या आप जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट से जो कंपनसेट करेंगे। और उसके लिए क्या होता है, अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो आप आईएमएफ की तरफ जाते हैं और आईएमएफ से कर्जा लेते हैं। वो आईएमएफ से कर्जा इसलिए लेते हैं ताकि आप अपने करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है उसको आप जो है वो खत्म कर सकें। ये आगे हम डिटेल में जी पढ़ेंगे, सर। मगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, तो क्लियर है मेरे ख्याल से? ओके, तो चलते यस हैं सर। आगे। तो ये क्लियर है, करंट अकाउंट के तीनों जो पार्ट्स हैं वो हमने क्लियर कर दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने बता दिया यस आपको, सर। इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स, इंटरेस्ट। ठीक है, एक चीज़ और जो फैक्टर इनकम में एक चीज़ और जो इंक्लूड करनी चाहिए वो ये है कि इनकम अर्न्ड बाय वर्कर्स ओवरसीज। अगर जो वर्कर्स ओवरसीज काम करते हैं तो वो जो हैं वो भी सारे के सारे इसमें फैक्टर इनकम में भी आ जाते हैं। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, सर रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेज जो होते हैं। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ जी एम्प्लॉइज जो हैं वो भी इसमें फैक्टर इनकम में आ जाते हैं। पर्सनल ट्रांसफर्स, जैसे मिस्टर अली सेंडिंग मनी फ्रॉम पाकिस्तान टू हिज फ्रेंड इन यूएस, तो ये भी पर्सनल ट्रांसफर सारे फैक्टर इनकम में आ जाएंगे। यूनिलेटरल ट्रांसफर के बारे में बता दिया मैंने आपको। एड्स, ग्रांट्स और गिफ्ट्स जो होते हैं वो यूनिलेटरल ट्रांसफर में आ जाते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट का ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। तो ये लास्ट में हम जो है वो बैलेंस निकालते हैं, वो हमारे पास यहाँ जो है नेगेटिव में आ गया है। ठीक है, तो नोट करें, यहाँ लिखा हुआ है, नोट व्हेन द नेट करंट अकाउंट बैलेंस इज नेगेटिव द कंट्री इज सेड टू बी सफरिंग ट्रेड डेफिसिट, एंड इफ इट इज पॉजिटिव द कंट्री इज एंजॉयिंग ट्रेड सरप्लस। एज अ रूल ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो रूल होता है, दिस नेगेटिव करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ 19 मतलब नेगेटिव 19 must be balanced by plus 19 in capital and financial accounts of BOP. In other words, current account deficit is offset by capital account surplus. ठीक है, तो ये समझ लिया आपने। ओके, तो अब उसके बाद ट्रेड डेफिसिट के इम्पैक्ट्स कौन से होते हैं हमारे कंट्री के जो इकोनॉमी है उस पे जो है वो कौन से इम्पैक्ट्स होते हैं, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं दूसरा जो हमारा पार्ट है, ठीक है, उसको। अच्छा, impacts of trade deficit and surplus on economy. Basically, when trade deficit occurs, GDP declines because our own goods and services are being replaced by foreign goods. इसकी वजह ये है कि जैसे अगर डेफिसिट में है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में है, तो इसका मकसद ये है कि आप इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे जितना आप बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो जितना अगर ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी, जीडीपी जो है वो, जीडीपी कहते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, जीडीपी मकसद ही यही होता है कि आप अपने कंट्री में कितना बनाते हैं। तो अगर वो ज़्यादा आप नहीं बनाएंगे तो यू विल डिपेंड अपॉन फॉरेन गुड्स। ठीक है, तो इसकी वजह यही है कि आजकल जो है वो देखें, कस्टम ड्यूटीज़ और कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। आप अगर कोई भी चीज़ जो है वो सपोज करें, अगर आप अगर जेपनीज कार जो है वो आप इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो अगर उसकी जो प्राइस होगी, जो ओरिजिनल प्राइस होगी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से, अगर वो सपोज करें रुपीज़ 4 लाख होगी, ठीक है, 4 लाख होगी, तो यहाँ आके वही कार जो है वो 20 लाख 25 लाख पे आप जो है आपको वो मिल जाती है। क्यों?
क्योंकि इस पे जो हमारी गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल बैंक की फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसीज़ के हवाले से कस्टम ड्यूटीज़ जो होते हैं वो तकरीबन कोई 400% या 300% लगाते हैं। तो जो चीज़ 400% मकसद मतलब कि भाई 4 लाख का 400%, तो 16 लाख वो हो गए। तो 4 लाख में आपको वहाँ से मिल रही है कार जापान से, और यहाँ 16 लाख जो है आप कस्टम ड्यूटीज़ पे करेंगे, तो 20 लाख में आपको वो कार मिल जाएगी यहाँ। तो इतने ये इसलिए होता है कि इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाता है। इंपोर्ट्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमेशा इनकी पॉलिसीज़ होती हैं कि भाई इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए, एक्सपोर्ट को इनकरेज किया जाए। तो एक्सपोर्ट्स के लिए एक अलग पैकेजेस जी। तो बेसिकली व्हेन ट्रेड्स डेफिसिट अकर्स, जीडीपी declines because our own goods and services are being replaced by foreign goods. When trade surpluses occur, our GDP increases because more people demand our goods than we do. This is the national effect. अब यहाँ देखें, जब ट्रेड सरप्लस होते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, आजकल देखें कि जो दुनिया के जो टॉप कंट्रीज़ हैं जिनकी जीडीपी जो है वो 6-7% जीडीपी है, ठीक है, या 8% जीडीपी है, तो उसमें कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ कोरिया है, उसके अलावा जापान है, ठीक है, और कुछ जो है कुछ कंट्रीज़ है यूरोप के, कई कंट्रीज़ जो हैं वो उनकी जीडीपी इतनी नहीं है, और अमेरिका की भी जीडीपी जो है वो इतनी नहीं है। चाइना की जीडीपी की बात करें तो चाइना की जीडीपी जो है वो ज़्यादा है। मतलब एक तो होती है जीडीपी और दूसरा होता है ग्रोथ रेट, कि ग्रोथ किस रेट से वो ग्रो कर रहे हैं। तो उसमें कुछ कंट्रीज जो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं उसमें टॉप पे जो है वो चाइना है, ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रो कर रहे हैं। अब क्योंकि इसका इसका मकसद ये है कि उनका अगर ट्रेड सरप्लस हर साल उनका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में जा रहा है, तो इसका मकसद ये है कि पीपल अराउंड द वर्ल्ड डिमांड देयर गुड्स। ठीक है, दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो उनके कमोडिटीज़ वहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना इज़ नाउ डोमिनेटिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, तो इसकी वजह ये है कि वो अपने एक्सचेंज रेट को जो है वो स्टेबल कर रहे होते हैं। तो दुनिया के कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपनी एक्सचेंज रेट को इसलिए स्टेबल करते हैं ताकि वो अपनी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं उनकी कमोडिटीज़ या प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करवाएं। जैसे अगर आप मैं यहाँ लिखूँ कि अगर चाइनीज़ युआन टू पीकेआर पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से आप देखेंगे तो इसका जो रेट है वो 23.49 रुपीज़ चल रहा है। तो इसका मकसद ये है कि इट्स नॉमिनल रेट। तो मकसद ये है कि या अगर आप 5 ईयर का ट्रेंड देखें, ये जो 5 ईयर है, 5 ईयर का अगर आप ट्रेंड देखें तो 5 ईयर में यहाँ देखें 2015 से लेके 2020 तक जो रेट है वो कोई 15 रुपीज़ से जाके 25 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं गया है। तो इसलिए वो इसको चाइनीज़ जो हैं वो अपनी करेंसी को इसलिए स्टेबल रखते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे कंट्रीज़ परचेज कर सके। अगर आप कोई दूसरा कंट्री कोई भी जैसे मलाइशियन रिंगिट के हिसाब से देखें तो मलाइशियन रिंगिट के हिसाब से चाइनीज़ जो युआन है वो 0.61 है। तो एनी कंट्री इन द वर्ल्ड कैन ईजिली इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, और यही वजह है वो चाहते हैं कि भाई वो यही चाहते हैं कि हम कंट्रीज़ को जो है वो इकोनॉमिकली डोमिनेट करें। यूएस का जो विजन है, यूएस का जो जो मतलब उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि वो दुनिया को मिलिट्रली और पावर के थ्रू डोमिनेट करना चाहते हैं, और चाइनीज़ जो हैं वो अपने सारे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको इकोनॉमिकली डोमिनेट करना चाहते हैं। और जब वो आप इकोनॉमिकली डोमिनेट करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे इन पे। ठीक है, जैसे जैसे अभी कुछ अर्सा पहले चाइना ने जो है वो फाइनेंस किया, श्रीलंका का जो एयरपोर्ट था उसको फाइनेंस किया। तो उसके बाद जब उन्होंने फाइनेंस किया तो उन्होंने लोन जो है वो टाइम पे नहीं किया, और एज अ पेनल्टी चाइना ने उसको सीज कर लिया। चाइना ने वो अभी जो है वो उनका एयरपोर्ट और जो उनका जो सारा सिस्टम है वो चाइनीज चला रहे हैं। तो वो इसी तरीके से कंट्रीज को जो है वो
पहले इनको इकोनॉमिकली डोमिनेट करते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ये अल्टीमेटली ये सीज करते जाएंगे। तो इसी तरीके से चाइनीज़ का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो यही है। तो चाइनीज़ की जितनी आप करेंसी जितने भी कंट्रीज़ के हिसाब से देखेंगे तो आपको उनका जो एक्सचेंज रेट मिलेगा वो कम मिलेगा। ठीक है बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ओके, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई एक तो अगर ज़्यादा आप चीज़ें बनाएंगे तो आपकी जीडीपी इंक्रीज होगी, और जीडीपी इंक्रीज होगी इसका मकसद यही होता है कि आपका जो आपकी जो डिमांड है गुड्स की वो फॉरेन डिमांड ज़्यादा है। इंटरनेशनली ट्रेड सरप्लसेस अफेक्ट एक्सचेंज रेट्स बिकॉज अ सरप्लस इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द करेंसी वेयर इज ट्रेड डेफिसिट्स हर्ट द वैल्यू। ठीक है, दिस अफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमिक पावर ऑफ अ नेशन। जितना आपका ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होगा उतनी आपकी करेंसी डिवेल्यूएट होती जाएगी। जैसे हमारे यहाँ सिचुएशन है, ठीक है, अभी जो है वो डॉलर 166 रुपीज़ चल रहा है। तो इसका मकसद ये है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो ज़्यादा है, और जब ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होगा तो we'll be compelled to beg from IMF or other donor agencies in the world। तो क्योंकि हमें डेफिसिट को कंपनसेट करना है, और कंपनसेट करने के लिए या तो आपके कुछ कोई फ्रेंडली कंट्रीज हों जो आपको डॉलर्स दे दें, या फिर आपके पास लास्ट जो ऑप्शन होता है वो IMF होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर वो अगर वो आपको कर्जा देते हैं डेफिसिट को कवर अप करने के लिए, तो फिर वो अपनी कंडीशंस बताते हैं, ये करें ये ना करें, ये अपने कंट्री में जो है वो इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा कर दें, ठीक है, और जो है वो महंगाई ज़्यादा कर दें। इसी तरीके से वो अपने कंडीशंस बताते हैं। तो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान इन 2011 ट्रेड वॉल्यूम वाज 33.2% ऑफ GDP। 2011 में जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम था, मतलब हमारा जो मर्चेंडाइज और सर्विसेज का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो 33% था GDP का। ठीक है, अब करंट अकाउंट बैलेंस स्टैंड पॉजिटिव इज $214 मिलियन ए सरप्लस। वहाँ फिस्कल ईयर 11 में जो है वो हमारा ये सरप्लस था। अच्छा, उसके बाद 2010 में वो डेफिसिट में था, और 11 में जो है वो सरप्लस में आ गया था। अभी की सिचुएशन देखें, अभी का सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान करंट अकाउंट रिकॉर्डेड अ डेफिसिट ऑफ $669। ठीक है, 669 जो है वो US मिलियन डॉलर का जो है वो डेफिसिट हुआ है इन मार्च 2020 कंपेयर्ड विथ डेफिसिट ऑफ $607 मिलियन डेफिसिट। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है, मतलब करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो 669 मतलब 670 मिलियन US डॉलर का जो है वो डेफिसिट है। अब यहाँ इसमें कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो आप देख सकते हैं। एक तो ये वेबसाइट है CEIC डेटा। ठीक है, तो ये वेबसाइट जो है ये भी नोट कर लें। इसमें आपको हर कंट्री की जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसकी डेटा मिल जाएगी। और दूसरी वेबसाइट जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ वो tradingeconomics.com है। तो इसमें आपको हर कंट्री की डेटा, यहाँ देखिए 1976 से लेके 2020 की डेटा जो है मिल जाती है। अगर आप रिसर्च के हवाले से जो है वो आप यूज़ करना चाहते हैं, सेकेंडरी डेटा पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट आपके लिए जो है वो बेहतरीन वेबसाइट है। तो इसमें अगर आप जाते हैं, देखें ये वेबसाइट है, इसमें अगर आप जाते हैं तो आपको कंट्री का जो रिकॉर्डेड करंट अकाउंट डेफिसिट है, यहाँ देखें लिखा हुआ है पाकिस्तान recorded a current account deficit of $736 मिलियन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। तो फिर यहाँ आपको डेटा भी मिल रही है 2017 से लेके जनवरी 2020 तक। यहाँ आप 10 ईयर की डेटा भी देख सकते हैं। ठीक है, 10 ईयर की डेटा देख सकते हैं, 10 ईयर में आपका जो डेफिसिट है वो कितना था। ठीक है, यहाँ देखें, इस सिचुएशन में देखें कि कुछ ईयर्स में ये सरप्लस में गया है, बाकी जितने भी ईयर्स हैं उसमें वो डेफिसिट में गया है। तो यहाँ देखें कि यस, तो यहाँ देखें कि ये 2011 वाला जो ईयर था, 2014 के बाद 15 में ये कुछ सरप्लस में गया था, जीरो से ऊपर गया था,
ठीक है। बाकी 2011 में भी देखें ये कुछ सरप्लस में गया था, फिर 2013 में कुछ जो है वो ये सरप्लस में गया था। बाकी नॉर्मली हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो डेफिसिट में ही रहा है। और 2020 में आप यहाँ देखें कि ज़ीरो से कम है, तो इसका मकसद ये है कि ये डेफिसिट में ही है। जो वर्स्ट केस था हमारे पास वो था 2018 के बाद जो फर्स्ट क्वार्टर था, उसमें हमारा वर्स्ट केस था, तो तकरीबन कोई 6000, यहाँ देखें कि 6000 से भी नीचे गया था वो, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट 7000 जो है वो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट रहा था। अगर आप जो है मजीद इसमें देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम 25 ईयर की डेटा देखना चाहते हैं, ठीक है, या मैक्सिमम देखना चाहते हैं, तो आपको वो भी डेटा यहाँ मिल जाएगी। तो दिस इज वेरी बेस्ट वेबसाइट फॉर गेट। यस बेटा अब्दुल्ला जी। सर अभी ये इंक्रीज हो रहा है? नहीं, अभी अभी ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें कि आप देखें कि 2020 के हिसाब से ये 2018 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये फिर इंक्रीज हुआ है, 2019 के हिसाब से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। मगर ये है कि नॉर्मली अभी पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से फिर से ये डाउन जा रहा है, ठीक है बेटा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगर आप 25 ईयर की डेटा देखते हैं तो 25 ईयर की डेटा के हिसाब से आप देखें कि हमारा जो टोटल ट्रेड करंट अकाउंट का बैलेंस रहा है वो ऑलमोस्ट हमारा जो है वो डेफिसिट में ही रहा है, ठीक है। तो इसमें आप सारी जो डेटा है वो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ें यहाँ देखना चाहते हैं, जैसे करंट अकाउंट टू जीडीपी रेशो कितना है, ठीक है, तो लोएस्ट जो है हमारा 8.50 नेगेटिव में गया था, ठीक है, तो हाईएस्ट 4.90 था। तो ये सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट में जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। देन हमारा जो दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, हम उसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। इट इज आल्सो रेफर टू एज फ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, ठीक है, एफडीआई या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट डीएफआई कहते हैं, और दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, और तीसरा जो है वो अदर कैपिटल है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स हैं, एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और तीसरा जो है वो अदर कैपिटल है, गवर्नमेंट कैपिटल एंड ऑफिशियल रिजर्व्स। ये अदर कैपिटल जो है ये एक्चुअली आपका फाइनेंशियल अकाउंट ही है, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फिजिकल फ्लोज होती हैं, मतलब ओनरशिप ऑफ फर्म्स, इन्वेस्टमेंट इन रियल एसेट्स in foreign countries such as land, building, existing plant, acquisitions, ठीक है, mergers, जितने भी आप दूसरे अगर फॉरेन कंपनीज जो हैं हमारी किसी भी कंपनी को अक्वायर करते हैं, वो भी फिर एफडीआई में आ जाता है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। लैंड, कोई भी दूसरा कंट्री जो है हमारे यहाँ आके पाकिस्तान में कोई प्लांट लगाते हैं, कोई लैंड परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं, तो हमें वो डॉलर्स देते हैं, ठीक है, या अपनी करेंसी जो है वो देते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिजिकल फ्लोज। और अगर हम पाकिस्तानी कोई बिजनेसमैन कहीं दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस ओपन करता है, तो वो भी जो है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा जो है वो ओनरशिप ऑफ फार्म्स होगा, ठीक है। तो फिर वो हम लास्ट में हम नेट फ्लोज कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है हमारे पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मकसद के स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अदर सिक्योरिटीज। अब इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर आप स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स परचेज करते हैं तो जितना आप पे करेंगे वो अमाउंट पे करते हैं जो पार वैल्यू पे आप स्टॉक्स परचेज करते हैं या बॉन्ड्स परचेज करते हैं, जो पार वैल्यू आप पे करते हैं वो अमाउंट जो होगा वो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा।
मगर उस बॉन्ड पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा या आपको जो उस स्टॉक पे आपको डिविडेंड मिल रहा होगा, वो फिर कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होगा, वो फिर करंट अकाउंट का पार्ट होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो क्लियर कर दें, क्योंकि आगे मैं जाके आपको एक प्रॉब्लम दूंगा और फिर उस प्रॉब्लम को आप जो है वो पर्टिकुलर सेक्शंस में रखेंगे, करंट अकाउंट में रखेंगे या कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर कर दें। स्टॉक्स, बॉन्ड्स इन अदर अदर सिक्योरिटीज परचेज करने की जो वैल्यूएशन होगी, जो आप अमाउंट पे करेंगे, वो आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में रखेंगे। उसके बाद हमारे पास है अदर कैपिटल, गवर्नमेंट कैपिटल एंड ऑफिशियल रिजर्व्स, लोन्स एंड ट्रेड क्रेडिट्स। ठीक है, IOU मतलब ये एक टाइप ऑफ लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो लोन्स एंड ट्रेड क्रेडिट्स हैं, ये एक्चुअली ये आपके अदर कैपिटल में आ जाते हैं। ठीक है, होल्डिंग्स हैं, ऑफिशियल रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स इन सेंट्रल बैंक, होल्डिंग्स ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज बाय ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो सारे के सारे अदर कैपिटल या फाइनेंशियल अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक होता है स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। अगर आप देखते हैं कि आपने जो है वो सपोज करें, मिसाल के तौर पर देखें, क्योंकि जैसे आप जो है वो मिसाल के तौर पर अगर आप करंट अकाउंट में कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं और वो इंपोर्ट करने के लिए आपको कैपिटल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब ये जो है सपोज बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपने कोई चीज़ जो है वो इंपोर्ट करवा दी। ठीक है, जैसे इंपोर्ट्स कार्स आपने इंपोर्ट करवा दी 100 मिलियन की। ठीक है, तो जो दूसरा अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट, या हम इसको कहें कि फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तो ये मिक्सअप ही होते हैं। कभी कभी फाइनेंशियल अकाउंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है या कभी कभी अलग भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंपोर्ट करेंगे 100 मिलियन के कार्स इंपोर्ट करेंगे, तो ये फाइनेंस कहाँ से करेंगे भाई? फाइनेंस आप जो है वो ऑफिशियल रिजर्व से करेंगे, जो आपके ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उसमें से करेंगे, या आपका कोई भी दूसरा जो सोर्स ऑफ फंड्स होगा वो आप कैपिटल अकाउंट्स में से करेंगे। ठीक है, तो ये आपके वहाँ जो है वो 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन जो है वो आपके नेगेटिव में हो जाएंगे। ये आपने 100 मिलियन के इंपोर्ट्स करवाए हैं। ठीक है, अब जब इंपोर्ट्स करवाते हैं, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपके पास कार्स आ जाती हैं। ठीक है, कार्स जो है वो फिजिकल फॉर्म में आपके पास एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, और ऑफिशियल रिजर्व्स में से 100 मिलियन जो है वो माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कभी कभी कोई ऐसी चीज़ जो होती है वो स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी हम किसको कहते हैं कि भाई कभी कभी कोई ऐसी चीज़ जो स्मगलिंग के फॉर्म में आपकी कंट्री में आई हो, स्मगलिंग के फॉर्म में आई हो। ठीक है, जैसे जो है वो मुख्तलिफ बॉर्डर से स्मगलिंग के फॉर्म में आपके पास जो है वो एसेट्स आ जाती हैं, कार्स आ जाती हैं या दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, और फिर वो क्योंकि वो जब आपकी कंट्री में आ जाती हैं तो वो आपकी वो इकोनॉमी के पार्ट बन जाते हैं और वो फिर जीडीपी में भी इंक्लूड हो जाते हैं। जब वो जीडीपी में इंक्लूड हो जाते हैं तो फिर वो उनका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं होता, आपके पास अवेलेबल तो होती हैं, फिर वो उसका सोर्स ऑफ फाइनेंस पता नहीं कहाँ से वो आई हैं, उसको वो पता नहीं होता। फिर लास्ट में अगर जैसे देखें, सपोज करें अगर 100 मिलियन के 100 मिलियन के हमारे पास जो है वो कार्स हैं अवेलेबल। ठीक है, और हमने जो है वो क्योंकि हमने देखे हैं कि हमारे पास फिजिकल वेल्थ जो है कार्स की वो 100 मिलियन की है, और हमने क्योंकि जो कार्स परचेज की थी वो 98 मिलियन की परचेज की थी। ठीक है, और अब 2 मिलियन की कार्स जो है हमारे पास ज़्यादा है, हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो डेटा के मुताबिक अगर हमारे पास हम कार्स की डेटा है तो हम व्हीकल्स की डेटा के मुताबिक देखते हैं कि भाई हमारे पास फिजिकल जो कार्स अवेलेबल है वो 100 मिलियन की है, और हमने फाइनेंस किया था 98 मिलियन की कार्स। तो बाकी ये 2 मिलियन के कार्स कहाँ से आए हैं? तो ये स्मगलिंग के थ्रू आ जाते हैं।
तो हम उसको फिर स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो फिर ये हम लिखेंगे कि भाई ये जो है ऑफिशियल रिजर्व्स में से हमने 98 मिलियन दिए थे, अब 100 मिलियन के कार्स अवेलेबल हैं, तो बाकी -2 मिलियन के जो है वो स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी ऐड करके फिर लास्ट में हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है वो 0 हो जाता है। तो इसी तरीके से हम जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट बनाते हैं। इज इट क्लियर बेटा? जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। नो सर। सर बस ये डिस्क्रिपेंसी जो है ना, ये डिफरेंसेस को हम कहते हैं। मतलब जो डिफरेंस बच जाए ना वो इसलिए बच जाती है, वो डिफरेंस इसलिए क्रिएट करते हैं, ये खुद ही क्रिएट करते हैं। स्टेट बैंक क्रिएट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट, ठीक है। तो ये खुद क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो अनरिकॉर्डेड होती हैं हमारी इकोनॉमी में, जैसे स्मगलिंग के थ्रू जो चीजें आती हैं वो फिर हमारी इकोनॉमी के पार्ट तो बन जाते हैं मगर रिकॉर्डेड नहीं होते। इनका सोर्स जो होता है वो मतलब पता नहीं होता कि भाई कहाँ से आए हैं ये। तो वो इकोनॉमी में तो आ गए हैं, हमने चेक किए कि भाई हमारे पास जो फिजिकल कार्स जो वैल्यूएशन की है हमने वो 100 मिलियन की है, हमने 98 मिलियन के इंपोर्ट करवाए थे। भाई ये 2 मिलियन के कार्स दूसरे कहाँ से आए हैं? ये स्मगलिंग के थ्रू आए हैं। तो फिर वो हम स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी में इंक्लूड करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है वो हम 0 कर देते हैं। तो इट मस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो उनका बैलेंस जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम जी सर। इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो it represents errors due to unrecorded transactions involving smuggling in other capital, also known as errors in emissions. Many experts believe that it is the result of large hidden capital flows, and so the items has been placed in the capital account part of the BOP, ठीक है। तो ये अब मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब एक जो है वो एक स्नैपशॉट है बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट का। भाई करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो एक्सपोर्ट्स कितने हुए हैं, फिर या लास्ट में इन्होंने लिखा है 683.7 मिलियन के जो है वो सपोज एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है। और फिर जो है वो इंपोर्ट्स कितने हैं, इंपोर्ट्स जो हैं वो -829 के इंपोर्ट्स हैं। माइनस में इसलिए क्योंकि इंपोर्ट करते हैं तो फिर हमें जो है वो देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तो माइनस में लिखते हैं। और ये प्लस में लिखे हुए हैं, ये जो है वो इसलिए हैं कि 683.7 ये एक्सपोर्ट्स हैं, ये हमें पैसे मिले हैं। फिर नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर जो है वो -28.4 मिलियन है। तो जो करंट अकाउंट बैलेंस है हमारे पास वो -174.1 मिलियन का अवेलेबल है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट आउटफ्लोज 0.6 है, इनफ्लोज 135.2 है, और नेट कैपिटल इनफ्लोज जो है वो 134.6 है। फाइनेंशियल अकाउंट 0.2 मिलियन है, और स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी जो है वो 39.5 मिलियन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट लास्ट में हमारा बैलेंस कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बनाते हैं बीओपी। ओके, तो लेट मी शो यू कि हमारा जो जी बेटा, जी क्वेश्चन है सर मतलब सर अगर बैलेंस में जितना भी डिफरेंस आ रहा हो, फॉर सपोज बैलेंस ऑफ पेमेंट में जी जी जो है ना वो जितना भी डिफरेंसेस है उसको स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी में जो है ना वो हम ऐड कर दें और फिर हम बैलेंस 0 कर दें। एग्जैक्टली इसी तरीके से होगा, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड होते हैं और स्मगलिंग के फॉर्म में आते हैं, या दूसरी उनका सोर्स पता नहीं होता, क्योंकि वो स्टेट बैंक के पास या हमारी इकोनॉमी में जो है वो रिकॉर्डेड नहीं होते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको एक टर्म है, इसको हम कहते हैं ब्लैक इकोनॉमी, ठीक है। शायद कोई ऐसा टर्म है, उसको ब्लैक इकोनॉमी कहते ही हम स्मगलिंग वाली इकोनॉमी को कहते हैं, तो वो उसमें आ जाता है फिर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान का करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट जो है वो देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पाकिस्तान, ठीक है। तो दिस इज़ अवेलेबल। और दूसरा हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस डिवीजन, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी अपनी वेबसाइट पे रखते हैं।
ओके, तो इट इज इट अब ये जो है ये एक पुराना बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट है. वी आर लुकिंग फॉर करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट. फिस्कल ईयर 51, so इट्स ओल्ड. अब यहाँ देखते हैं कि okay, so let me search again. Okay, balance of payment for 2019. ठीक है, तो ये सर्च कर लेते हैं, देखते हैं. बैलेंस ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ पंजाब आ रहा है. ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम सर्च करते हैं. ओके, it's also available in SBP website. अगर हम यहाँ लिखें बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और हम लिखें साइट पे लिखें spp.org.pk. ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ. Okay, so you may search it by using means. अब अगर आप यहाँ इसमें देखेंगे, एक tradingeconomics.com में देखेंगे, तो हमारे पास ये अवेलेबल है बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट. ठीक है, ओके. अगर हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट देखें, जैसे ये है, तो इसको देखें आप कि यहाँ जो है वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. ठीक है, अब यहाँ देखें कि ओके, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो ये हैं. ठीक है, 2001 के हिसाब से ये हैं. ओके, तो इसी तरीके से देखें कि करंट यहाँ देखें कि करंट अकाउंट बैलेंस भी अवेलेबल है, जिसमें ट्रेड बैलेंसेस है, सर्विसेज हैं, करंट ट्रांसफर्स हैं. ठीक है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल है. ठीक है, और ऑफिशियल असिस्टेंस है, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स हैं, ओवरऑल बैलेंस कितना आ रहा है, उसके बाद फाइनेंसिंग है. और फिर इसी तरीके से लास्ट में जो है वो इसमें लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो, क्योंकि इनको ये दोनों साइडों पे इनको इक्वल करना होता है. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ देखिए करंट अकाउंट बैलेंस लिखा हुआ है -966 है, और कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो है वो -84 है. ठीक है, ओवरऑल बैलेंस जो है वो -1050 है. मगर हर कंट्री का जो एक उसमें जो अकाउंट्स होते हैं अंदर वो डिफरेंट होते हैं. ओके, सम फैक्ट्स अबाउट बीओपी के बारे में कुछ फैक्ट्स क्या हैं कि जापान एंड चाइना हैव ट्रेड सरप्लस. ठीक है, दूसरे कंट्रीज, कई कंट्रीज हैं जिनका जो बीओपी जो है, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस है. पाकिस्तान, इंडिया, यूएस एंड मेनी अदर कंट्रीज आर सफरिंग ट्रेड डेफिसिट. ठीक है, और since the late 1950s the United States has generally experienced an unfavorable
balance of payments because of large scale foreign aid, sizable US investment in Europe, ठीक है, and major US military investments abroad. तो इसी तरीके से जो है वो यूएस जो एक बड़ी इकोनॉमी है उसका भी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डेफिसिट में है, ठीक है। कौन से फैक्टर्स जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड को अफेक्ट कर रहे होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कौन से फैक्टर्स हैं? इन्फ्लेशन है, नेशनल इनकम है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं और एक्सचेंज रेट, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज अ जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी। हाई इन्फ्लेशन causes exports to decline, ठीक है। People will buy from foreign countries due to high local inflation. अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ज़्यादा महंगाई है, तो इकोनॉमी जो होगी वो हमारी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्योंकि अगर ज़्यादा महंगाई है तो लोकल जो कंपनीज होंगे वो ज़्यादा प्राइस देके, ज़्यादा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ज़्यादा एक्सपेंसिव परचेज करके वो चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। और जब ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बनाएंगे तो वो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो हाई इन्फ्लेशन काजेज एक्सपोर्ट्स टू डिक्लाइन, पीपल विल बाय फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ड्यू टू हाई लोकल इन्फ्लेशन। ज़्यादा लोकल इन्फ्लेशन होगा तो वो उन कंट्री से परचेज करेंगे जहाँ वो चीज़ें सस्ती हों। जैसे चाइना में तकरीबन जो चीज़ें जो है वो इनएक्सपेंसिव होती हैं, लेस कॉस्टली होती हैं, तो वहाँ से परचेज की जाती हैं, ठीक है। ओके, देन if income level is high in a country, consumption of goods increases. अगर इनकम लेवल ज़्यादा है, हमारे कंट्री में इनकम लेवल ज़्यादा है, तो कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स इज आल्सो ऑगमेंटेड। तो इनकम लेवल अगर ज़्यादा है तो कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इंक्रीज हो जाती है और फॉरेन डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये भी इसी तरीके से ही है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हमारे यहाँ जो इनकम लेवल है, अगर इनकम जैसे महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट जो है वो सैलरीज, वेजेस और दूसरे जो इनकम है वो भी बढ़ाते हैं। तो कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस एंड डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स इज आल्सो ऑगमेंटेड, ठीक है। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस कौन से हैं? गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस कैन अफेक्ट ट्रेड फ्लोज हाईली इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ्स एंड कोटाज। टैरिफ्स क्या हैं? टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स, एंड कोटाज कीपिंग ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ गुड्स टू बी इंपोर्टेड आल्सो डिक्रीज इंपोर्ट। तो मैंने जैसे ये कहा कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट में जाएंगे तो इस SBP की वेबसाइट में आपको ज़्यादा जो है वो ये देखने में आएगा कि वो एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं और इंपोर्ट्स को ज़्यादा जो है वो डिस्करेज कर रहे हैं। अब यहाँ देखें कि डिफरेंट चीज़ें, एक चीज़ आप यहाँ देखें लेफ्ट साइड पे इंसेंटिव स्कीम एक्सपोर्ट्स आपको दिख रहा है। ये एक्सपोर्ट्स पे क्यों इंसेंटिव स्कीम्स दे रहे हैं? मतलब एक्सपोर्ट्स को ये ज़्यादा इनकरेज क्यों कर रहे हैं? इनका एक ही इनकी वजह एक ही है कि भाई ये अगर एक्सपोर्ट को ज़्यादा इनकरेज करेंगे ना तो इसका मकसद ये होगा कि ये मतलब लोकल जो हमारे बिजनेस पीपल हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं कि भाई आप ज़्यादा चीज़ें बनाएं, ज़्यादा जो है वो आप जो है वो इंडस्ट्रीज़ को बूस्टअप करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क से बाहर जो है वो भेजें ताकि फॉरेन रिजर्व जो हों वो बढ़ जाएं। अगर फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाएंगे ना हमारे, तो हमें किसी के आगे जो है वो हम बेग नहीं करेंगे, ठीक है। IMF से कर्जा नहीं लेंगे, किसी दूसरे कंट्री से जो है वो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो हमारे जो एजेंसीज होती हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल बैंक जो होते हैं, वो सारे के सारे इसी के ऊपर जो है वो काम करते हैं। ओके, उसके बाद बेटा उसके बाद जो है वो हमारे पास एक और चीज़ आप यहाँ देखें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और SMEs जो हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उनको भी ये इनकरेज कर रहे होते हैं। क्यों इनकरेज करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे कंट्री में जितने भी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने बिजनेसेस को बूस्टअप करें, एक्टिविटीज़ ज़्यादा करें, चीज़ें ज़्यादा बनाएं ताकि लोकल डिमांड भी जो है वो अकम्प्लिश हो जाए, फुलफिल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाहर भी चली जाएं।
और इसलिए स्टेट बैंक ने देखें आजकल जो हमारा पॉलिसी रेट चल रहा है वो 8% चल रहा है, ठीक है। ये इसलिए इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज करते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज करेंगे तो वो जो पीपल विल बारो मोर फ्रॉम द बैंक्स, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो ज़्यादा आसानी से कर्जे मिल जाएंगे। जब ज़्यादा आसानी से कर्जे मिल जाएंगे तो बिजनेस पीपल के लिए ये एक जो है वो आसानी हो जाएगी कि वो कर्जे लें और बिजनेस स्टार्ट करें। एग्रीकल्चर वालों के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक एक मतलब इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। तो एक चीज़ का इम्पेक्ट जब भी इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी के ऊपर आप बात करें ना, तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट किया करें, चेन बनाएं कि क्योंकि अगर देखें, अगर मैं यहाँ कहूँ कि भाई अगर मैं यहाँ लिखूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट्स लो होंगे तो इसका इम्पेक्ट कौन सा पड़ेगा? इसका इम्पेक्ट पड़ेगा भाई पीपल विल बारो मोर, मतलब बैंक से ज़्यादा वो कर्जे लेंगे और वो आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि रेट्स जो हैं वो कम हैं। और अगर बारो ज़्यादा करेंगे तो बिजनेस एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन सी? इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और फिर उसका क्या इम्पेक्ट होगा? उसका इम्पेक्ट ये होगा कि जीडीपी बढ़ जाएगी। हमारी जो इकोनॉमी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। और इससे ये भी फर्क पड़ेगा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ अगर बढ़ेंगी तो जो है डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ओके, गवर्नमेंट restrictions can affect trade flows highly in the form of tariffs and quotas. ये tariffs and quotas जो हैं वो imports पे लगाते हैं, ठीक है। tariffs मकसद के taxes on imported goods, increase the price of foreign goods, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जापानीज कार जो है वो इंपोर्ट करवाएंगे तो वहाँ जो उनकी जो जापानीज कार की जो प्राइस है पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से वो 3-4 लाख रुपए होगी। मगर यहाँ जो उनके जब यहाँ वो कार आ जाती है तो उसमें जो ड्यूटीज लगते हैं, कस्टम ड्यूटीज लगते हैं, टैरिफ्स लगते हैं, तो वो तकरीबन कोई 400-500% लगते हैं। तो जो कार जो है वो 4 लाख पे मिलनी चाहिए वो वहाँ यहाँ आके वो 20 लाख की हो जाती है। तो इसी तरीके से इतने जो है वो टैरिफ्स और कोटाज लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोटाज जो हैं, कोटाज का मकसद होता है कीपिंग ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ गुड्स टू बी इम्पोर्टेड, आल्सो डिक्रीजेज इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि कोटाज में जैसे डिफरेंट कंपनीज हैं, कोई भी चीज़ जो है वो इंपोर्ट करवाते हैं। एक इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री करवाते हैं, जो रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करवाते हैं। तो रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करवाते हैं तो उसमें ये होता है कि वो उसमें कोटाज इनपुट करते हैं। कोटाज का मकसद होता है कि परसेंटेज रखते हैं कि भाई इतनी इतनी कारें आप जो है वो इस साल में इंपोर्ट करवा सकते हैं, इससे मजीद आप नहीं करवा सकते। तो these tariffs and quotas actually restrict the actually decrease the imports. Okay. एक्सचेंज रेट्स का क्या जो है वो इम्पेक्ट होता है? इफ ईच कंट्रीज करेंसी इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है, ये तो पता है। इफ अ कंट्रीज करेंसी राइजेस इट्स करंट अकाउंट बैलेंस शुड डिक्रीज। अगर कंट्री की करेंसी जो है वो राइज हो जाए तो इसका जो करंट अकाउंट बैलेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एज अ करेंसी राइजेस द गुड्स एक्सपोर्टेड विल बी एक्सपेंसिव फॉर इंपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो अगर करेंसी राइज हो जाए तो इसका मकसद ये है कि द गुड्स एक्सपोर्टेड विल बी एक्सपेंसिव फॉर इंपोर्टिंग कंट्रीज, thus lowering the demand. Strong currency is expected to cause a trade deficit, ठीक है। Weak currency is expected to cause a higher trade surplus. Example, Pakistan's currency against US dollar. अगर जो वीक करेंसी है जैसे पाकिस्तान करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो पीपल इन अमेरिका can easily import things from Pakistan because of having weak currency and because of मतलब ये है कि करेंसी अगर डिवेल्यूएटेड है तो इजीली वो इंपोर्ट करवा सकते हैं क्योंकि उनको जो है वो सस्ता पड़ेगा। वीक करेंसी रिड्यूसेस द डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स।
और वीक करेंसी जो है वो फॉरेन गुड्स का जो डिमांड है उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि अगर वीक करेंसी होगी तो इससे क्या होगा कि जो फॉरेन हमारे पास गुड्स होंगे, किसी भी कंट्री के गुड्स होंगे, वो इंपोर्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि आप यहाँ वो चाहते हैं कि यहाँ से डॉलर्स जो हैं वो दूसरी कंट्री में ना जाएं। ठीक है, तो इसके लिए वो वीक करेंसी reduces the demand for foreign goods. Okay, करेक्टिंग दी ट्रेड डेफिसिट। अगर ट्रेड डेफिसिट को कैसे करेक्ट किया जाए, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ट्रेड डेफिसिट को करेक्ट करते हैं? एनी पॉलिसी दैट इंक्रीजेस डिमांड फॉर कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी ऐसी पॉलिसी जो कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड बढ़ा दे, उसको हम वो पॉलिसी कहते हैं जो ट्रेड डेफिसिट को या बैलेंस ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव कर दे। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या हैं? इफ एक्सपोर्ट प्राइस बिकम्स अट्रैक्टिव, अगर हमें दूसरे कंट्री से कोई अच्छी प्राइसेस मिल जाएं हमारे लोकल चीज़ों के लिए, तो फिर वो हम क्या करेंगे, फिर हम जो है वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ जाएगा। ठीक है, और फ्लोटिंग रेट में करेक्ट द डेफिसिट। फ्लोटिंग रेट जो होते हैं, मतलब एक्सचेंज रेट जो होते हैं, वो भी डेफिसिट को ख़त्म कर सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट में एक्सपीरियंस इन एन स्टेबल करेंसी, अगर ट्रेड डेफिसिट जो है ट्रेड डेफिसिट होगा तो फिर अल्टीमेटली उसमें से हमें जो है वो मतलब स्टेबल करेंसी को वो एक्सपीरियंस करेगा। वो कैसे, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। अगर जो है इफ एक्सपोर्ट प्राइस बिकम्स अट्रैक्टिव, अगर एक्सपोर्ट प्राइस अट्रैक्टिव हो जाए, मतलब अगर सऊदी अरब से या दुबई से या यूनाइटेड अरब इमारेट से हमारी जो है वो कोई कमोडिटीज जो हम प्रोड्यूस करते हैं उनकी डिमांड आ जाए वहाँ से, और वो अच्छे जो है वो पैसे दे दें इसके लिए, कमोडिटीज के लिए, तो इसके लिए तो इससे क्या होगा कि इससे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाएगा। दिस कैन अकर व्हेन अ कंट्री हैज लो इन्फ्लेशन एंड लो करेंसी वैल्यू। ये तब होता है जब हमारे पास कंट्री का जो इन्फ्लेशन है वो कम हो और करेंसी वैल्यू जो है हमारी लो हो, तो फिर ये एक्सपोर्ट प्राइसेस जो हैं वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। फ्लोटिंग रेट में करेक्ट द डेफिसिट। when country is spending more on foreign goods, when country is receiving less from exports। ठीक है, अगर कंट्री के एक्सपोर्ट ज़्यादा हों और इम्पोर्ट्स जो है वो कम हों, तो इट मीन्स मोर सप्लाई ऑफ होम करेंसी फॉर सेल, हमारी होम करेंसी का जो सप्लाई होगा वो ज़्यादा होगा, द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी शुड डिक्रीज। और सप्लाई अगर ज़्यादा है और ऊपर से जो है वो डिमांड कम है, कोई जो है वो हमारी करेंसी परचेज नहीं कर रहा, तो क्या होगा, हमारी करेंसी डिवेल्यूएट हो जाएगी। दिस डिक्रीज विल इनकरेज मोर फॉरेन डिमांड ऑफ होम ट्रेड, होम मेड प्रोडक्ट्स। तो अगर यूएस डॉलर 166 रुपीज चल रहा है अभी, तो अगर 2 साल पहले कोई कमोडिटी अगर हम एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, तो उसके बदले हमें डॉलर्स जो है वो अगर $10 मिल जाते थे, तो आज हमें उसकी जगह पे $5 या $6 मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी डिवेल्यूएट हो गई है। ठीक है, तो अगर करेंसी डिवेल्यूएट होगी तो इससे हमारी जो कमोडिटीज़ हैं उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, फॉरेन डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी। देयरफॉर करंट अकाउंट विल इंक्रीज, बट दिस टेक्निक मे नॉट ऑलवेज वर्क। मगर ये नहीं है कि ये परमानेंट बेसिस पे नहीं होता। ओके, ट्रेड डेफिसिट्स may experience in an unstable currency. Again recall deficit, spending more on foreign goods, receiving less from exports। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि अगर डेफिसिट होता है तो इसका सिंपली ये माना है कि भाई आप जो है फॉरेन गुड्स पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स में से आपको कम पैसा मिल रहा है, रिजल्टिंग इन लो वैल्यू ऑफ करेंसी। नाउ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर फॉरेनर्स। ठीक है, मतलब ये कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है इन सिक्योरिटीज बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर फॉरेनर्स, इंक्रीज डिमांड। बेटा माइक म्यूट कर दें।
ओके, अगर डेफिसिट होगा तो हमारा जो करेंसी वैल्यूएशन है वो कम हो जाएगा। उसके बाद नाउ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर फॉरेनर्स, और अब जो है वो फॉरेनर्स हमारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग लो करेंसी, लो वैल्यूड करेंसी। इंक्रीज डिमांड ऑफ होम करेंसी, अपवर्ड प्रेशर ऑन होम करेंसी। अगर डिमांड ज़्यादा आएगी, बाहर से डिमांड ज़्यादा आएगी तो डेफिनेटली हमारे यहाँ सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी। अपवर्ड प्रेशर ऑन होम करेंसी, देयरफॉर द ट्रेड इम्बैलेंस विल बी ऑफसेट बाय पॉजिटिव कैपिटल अकाउंट। तो जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो पॉजिटिव कैपिटल अकाउंट से ऑफसेट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमारी करेंसी जो है उसका फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वीक करेंसी में नॉट ऑलवेज बी दी सोल्यूशन। ठीक है, वीक करेंसी हमेशा सोल्यूशन नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं कि भाई एक और चीज़ आपको बता दूं कि भाई किस तरीके से हम जो है वो एजेंसीज कौन सी हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को ख़त्म करने में बैलेंस ऑफ, एक्चुअली ये होना चाहिए बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, ये मैंने यहाँ गलत लिखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है। जो एजेंसीज हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में हेल्प आउट करना चाहती हैं वो कौन सी हैं? आईएमएफ है, आईबीआरडी है, डब्ल्यूटीओ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स हैं, या रीजनल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं। ये एजेंसीज जो हैं ये सारे के सारे हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट को जो है वो क्या करते हैं, वो उसको ख़त्म करने में हेल्प करती हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर ट्रेड डेफिसिट होता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम जो है वो लास्ट रिजोर्ट हमारे पास जो होता है वो आईएमएफ होता है। पहले तो हम फ्रेंडली कंट्रीज से कर्जा लेते हैं, अगर नहीं मिलता तो फिर हम जाते हैं आईएमएफ के पास, और आईएमएफ का जो कर्जा होता है वो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होता है। तो वो मतलब हमारी इकोनॉमिक, हमारी जो कंट्री के जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, उन पे वो जो है वो एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? वैसे तो इनका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज, टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, ये कंट्रीज के बीच में जो कोऑपरेशन है उनको प्रमोट करते हैं, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, मतलब प्रमोट करते हैं। टू प्रोवाइड टेम्पररी फंड्स टू मेंबर कंट्रीज अटेम्प्टिंग टू करेक्ट इम्बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, अगर किसी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट है तो उनको कर्जा देते हैं। टू प्रोमोट द फ्री मोबिलिटी ऑफ फंड्स अक्रॉस कंट्रीज, टू प्रोमोट फ्री ट्रेड। ठीक है, और दूसरा है एक कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी। अब ये फैसिलिटी जो है वो दिस फैसिलिटी इज मेनली used by developing countries. Each country is assigned a quota. हर कंट्री को एक कोटा दिया जाता है कि भाई आप इतना फंड ले सकते हैं। The amount of fund that a member country can borrow depends upon its quota. The country must be willing to work with IMF to resolve the problem. ठीक है, तो ये फैसिलिटी तब अवेल की जाती है, ये फैसिलिटी IMF से ही अवेल की जाती है, मगर उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और तो एक चीज़ है जिसको एक फैसिलिटी है जिसको हम कहते हैं SDR। ठीक है, अब SDR है क्या? SDR इज एन स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट, द SDR इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट created by the IMF in 1969 to supplement its member countries official reserves। ठीक है, तो ये किसी भी मेंबर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक को जो है या गवर्नमेंट को जो है वो कर्जा देते हैं। कैसे, क्यों कर्जा देते हैं? ताकि वो कहते हैं कि भाई इनका जो ट्रेड डेफिसिट है उनको ख़त्म करने में वो हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो सो फार स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ $204.2 बिलियन, ठीक है, इक्विवेलेंट टू अबाउट $281 बिलियन दिए गए हैं, हैव बीन एलोकेटेड टू मेंबर्स इंक्लूडिंग SDR 182.6 बिलियन एलोकेटेड इन 2009। ठीक है, इन द वेक ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए थे तो उन्होंने हर कंट्री को SDR दिए थे। IMF allocates it to member countries to supplement current currency reserves. It is not a currency but a unit of account. ठीक है, तो ये देखें डिफरेंट हमारे पास SDR बास्केट एंड इट्स वैल्यूएशन, करेंसी अमाउंट इन 1 SDR।
ठीक है। यूएस डॉलर जो है वो 0.577, 1 एसडीआर इज इक्वल टू 0.577 यूएस डॉलर। और एक्सचेंज रेट वर्सेस यूएस डॉलर के हिसाब से एक्सचेंज रेट जो है वो वन यूएस डॉलर है। तो यूएस डॉलर इक्विवेलेंट कितना बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एसडीआर से इस तरीके से बनते हैं। दूसरा लास्ट में हम ये इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसको जो है वो बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक की। आजकल इसका नाम जो है वर्ल्ड बैंक है, पहले आईबीआरडी होता था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड इन 1944, और ये जो है वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन देते हैं, ठीक है। It spread its funds through co-financing. ऑफिशियल एड एजेंसीज प्रोजेक्ट्स के लिए देते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, कमर्शियल बैंक्स, इनको जो है वो लोन देते हैं ये, ठीक है। तो काफ़ी इदारे हैं, आईबीआरडी है, वर्ल्ड बैंक तो आईबीआरडी है, और आईएमएफ है, दूसरे इदारे हैं जो तकरीबन सारे कंट्रीज़ को जो है वो लोन देते हैं, या उनकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसको जो है वो ये हेल्प ख़त्म, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, या उनका जो डेफिसिट होता है उनको ख़त्म करने के लिए ये लोन देते हैं या एक सपोर्ट देते हैं। अब जो प्रॉब्लम होगा आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये नोट कर लें, ये प्रॉब्लम आप जो है वो बना के आएंगे। प्रिपेयर बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट, ये मैं शेयर करूंगा, चाहे आप चाहे स्क्रीनशॉट, एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कमिंग क्लास तक जो है आप ये करके फिर मुझे आप ईमेल कर दें या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है बेटा। तो इस प्रॉब्लम को पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर 2013, Pakistani government has exported the garments of about 502.73 and imported computers, ठीक है। तो इसको आप जो है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट पे बना के, मतलब जैसे मैंने आपको दिखाई इस तरीके जो आप पहले मैंने आपको शीट दिखाई थी, ठीक है, उस तरीके की शीट बना के फिर उसमें ये सारे वैल्यूज जो है वो पुट करके आएंगे, इस तरीके से आप बना के आएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट। लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपके पास बैलेंस आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये स्लाइड नंबर कौन सी स्लाइड पे है ये अवेलेबल, ये है आपके पास जो स्लाइड नंबर 51 पे है अवेलेबल, ठीक है। ये मैं स्लाइड शेयर करूंगा और ये प्रॉब्लम जो है आप शीट पे बना के आएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू ऑल, और क्वेश्चन हो तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ सकते हैं। सर जो अभी आपने एसडीआर का बताया, वो किस नो सर। जो है करेंसी के अगेंस्ट कितना बन रहा था, वो कैसे कैलकुलेशन की उसकी? हाँ, एक मिनट बेटा जी। एसडीआर जो होते हैं वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, ठीक है, क्रिएटेड बाय द आईएमएफ, मतलब इन्होंने खुद बनाए हैं इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, ठीक है। तो उनका यूएस डॉलर के हिसाब से, यूरो के हिसाब से, जीबीपी के हिसाब से उनका अलग एक वैल्यूएशन होता है। जैसे यहाँ देखें लिखा है कि भाई सो फार एसडीआर 204.2 बिलियन, मतलब ये 204.2 बिलियन एसडीआर इशू किए गए हैं, ठीक है, अलोकेट किए गए हैं मेंबर्स को, वो इक्विवेलेंट बनते हैं 281 यूएस बिलियन डॉलर, 281 यूएस बिलियन डॉलर बनते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, पहले यहाँ देखें कि करेंसी यूएस डॉलर है, अमाउंट इन 1 एसडीआर में जो है वो कितने यूएस डॉलर्स अवेलेबल होते हैं, 0.577, ठीक है। एक्सचेंज रेट वर्सेस यूएस डॉलर, मतलब एक्सचेंज रेट, क्योंकि अगर 1 एसडीआर है तो एक्सचेंज रेट इसका जो है वो यूएस डॉलर के हिसाब से 1 बनेगा। अगर यूरो है तो एसडीआर का जो एक्सचेंज रेट है वर्सेस यूएस डॉलर वो 1.422, ये मतलब यूरो का
ये जो है ये यूरो का रेट है अगेंस्ट दी यूएस डॉलर। ये वाला ये जो रेट है ये यूरो का जो रेट है यूएस डॉलर के हिसाब से है, और ये जो है ये जीबीपी का रेट है अगेंस्ट यूएस डॉलर, और ये जो है वो 125 अगेंस्ट दी यूएस डॉलर। ठीक है, तो अच्छा ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये कोई और करेंसी होगी इसको आप कंसीडर ना करें। ठीक है, ये देखें यूरो जो है ये यूरो का 1.42550 ये यूरो की करेंसी का एक्सचेंज रेट है अगेंस्ट यूएस डॉलर, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट इन 1 एसडीआर इक्वल टू 1 यूएस डॉलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपको जो है वो ये मिलता है। ठीक है, अच्छा, और फिर अमाउंट इन 1 एसडीआर में यूरो कितने होते हैं ये अमाउंट है, और यूरो का जो है वो यूएस डॉलर के हिसाब से एक्सचेंज रेट कितना है ये अमाउंट है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूएस डॉलर इक्विवेलेंट जो है एसडीआर कितने बनेंगे 0.140269 इस तरीके से। ठीक है बेटा।